नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, और विशेषण क्या है। নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমরা বিশেষণ সম্পর্কে জানবো, যেটা কি এসএসসি জিডিতে একটা কোশ্চেন থাকেই থাকে, আর কোনো কোনো সময় দুটোও দেখা যায়। ঠিক আছে, তো আমরা বাংলা এবং হিন্দিতে পুরো বিশেষণ চ্যাপ্টারটা পুরো একদম গুলে খেয়ে নেবো। ঠিক আছে, তো আসো তোমাদের জন্য রেডি করে রেখেছি। দেখো কি বলেছে। হ্যাঁ, বিশেষণ বিশেষণ পড়তে হলে প্রথমে আমাদের মাথায় তিনটে জিনিস রাখতে হবে। কি কি সেটা? একটা হচ্ছে বিশেষণ, দু নম্বর হচ্ছে বিশেষ্য, আর তিন নম্বর হচ্ছে প্রবিশেষণ। ঠিক আছে, তো বিশেষণ কি? বিশেষণ হচ্ছে কোনো ব্যক্তির যে গুণ বোঝাবে, গুণ বোঝালে সেটা হচ্ছে বিশেষণ। সংজ্ঞায় কি বলেছে দেখিনি একবার। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाली शब्द को विशेषण कहते हैं। মানে কোনো কিছুর গুণ, কোনো সংজ্ঞা এবং সর্বনামের বিশেষতা মানে গুণ, রং ইত্যাদি বোঝাবে, তখন সেটা হবে বিশেষণ। ঠিক আছে, আর जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। মানে যার সম্পর্কে বলা হবে সেটা হবে বিশেষ্য। মানে যদি বলা হয় রাম ভালো ছেলে, রাম ভালো ছেলে যদি বলি, এখানে রাম ভালো ছেলে, এখানে রাম হয়ে যাবে হচ্ছে বিশেষ্য। ভালো, ভালোটা হবে বিশেষণ। আর যদি বলা হয় রাম খুব ভালো, এখানে রাম হয়ে যাচ্ছে বিশেষ্য, আর ভালোটা হয়ে যাচ্ছে বিশেষণ। আর যে খুবটা পড়ে থাকছে, যেটা বিশেষণের আগে বসে আছে, বিশেষণের ও বিশেষণ বলছে, সেটা হয়ে যাবে प्रविशेषण। সংজ্ঞা কি বলেছে? विशेषण शब्द की भी विशेषता बताने वाली शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। মানে যেটা বিশেষণ, ভালোটা বিশেষণেরও বিশেষণ বলছে, মানে ভালো যেটা খুব ভালো সেটা হচ্ছে প্রবিশেষণ। তো দেখো এই সম্পর্কে একটু পরের পেজে নিয়ে এসেছি আমি। এই যে উদাহরণ দিয়ে আনা হয়েছে, যে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, অজয় বহুত আচ্ছা লড়কা হ্যায়, মানে হচ্ছে অজয় খুব ভালো ছেলে। তা অজয় মানে হচ্ছে কোনো ব্যক্তি, মানে কোনো সংজ্ঞা বা কোনো সর্বনাম, সেই হচ্ছে কি বিশেষ্য। মানে অজয় সম্পর্কে বলা হচ্ছে, মানে অজয় হচ্ছে বিশেষ্য। কি বলেছে? আচ্ছা মানে ভালো, তা কে ভালো? অজয় ভালো। তাহলে আচ্ছা মানে এটা হচ্ছে গুণ, অজয় একটা ভালো ছেলে, এটা হচ্ছে এর গুণ, তা গুণ বোঝাচ্ছে, তার জন্য এটা হচ্ছে বিশেষণ। আর এই যে বহুত, যেটা আগে লেগেছে খুব ভালো, মানে বহুত আচ্ছা মানে খুব ভালো, এই বহুতটা হয়ে যাবে প্রবিশেষণ, কারণ এটা বিশেষণেরও বিশেষণ বোঝাচ্ছে, বিশেষণেরও বিশেষতা, মানে বিশেষণেরও গুণ বোঝাচ্ছে, সেটা হচ্ছে প্রবিশেষণ। বোঝা গেল এইটুকু। নেক্সট দেখো, এখানে দেখো বিশেষণকে চারটে ভাগে ভাগ করেছি এখানে আমরা। ঠিক আছে, প্রথমে পুরো বিশেষণের সংজ্ঞাটা একবার দেখে নেবো। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेषण एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द মানে লিঙ্গ ইত্যাদি, লিঙ্গ সন্ধি বচন ইত্যাদি পরিবর্তন হবে। যেমন राम गाता है, सीता गाती है, राम खाता है और सीता खाती है। खाता है আর খাতি হে এরকম যেমন চেঞ্জ হচ্ছে, লিঙ্গ অনুপাতে চেঞ্জ হচ্ছে, তার জন্য বলা হচ্ছে বিকারী শব্দ। ঠিক আছে, এবং বিশেষণের যে চারটে ভাগ, সেই চারটে ভাগ আমরা দেখে নেব কি কি। একটা হচ্ছে পরিমাণবাচক বিশেষণ, একটা হচ্ছে পরিমাণবাচক বিশেষণ, দু নম্বর হচ্ছে গুণবাচক বিশেষণ, তিন নম্বর হচ্ছে সংখ্যাবাচক বিশেষণ, চার নম্বর হচ্ছে সর্বনামিক বিশেষণ। ঠিক আছে, পরিমাণবাচক বিশেষণ মানে কি? কোনো কিছু পরিমাণ বলবে, যেমন 1 কেজি, 2 কেজি, 1 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 1 একর, 2 একর, এটা হচ্ছে পরিমাণবাচক। গুণবাচক কি? গুণবাচক ভালো, খারাপ, মন্দ, লাল, হলুদ, এসব বোঝাবে। 3 নম্বরে কি আছে? সংখ্যাবাচক, যার সঙ্গে কোনো সংখ্যা থাকবে। ঠিক আছে, এই পরিমাণ আর সংখ্যাটা প্রায় একই রকম। ঠিক আছে, তার জন্য ওটা এই দুটো সেম অপশানে দেয় না। আর হচ্ছে সর্বনামিক,
মানে যে সংজ্ঞা মানে কর্তাকে নিয়ে যে বিশেষণ দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে সর্বনামিক বিশেষণ। ঠিক আছে, যেরকম ধরো উদাহরণ बड़ा काला लंबा दयालु सुंदर वीर भारी कायर ढेढ़ा एक दो दुगना इत्यादि। ठीक है, अगले देखते हैं क्या है। हाँ, विशेषण के यहाँ पर चार भेद का पहला सर्वनामिक विशेषण, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, ये है सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण क्या क्या है? वे सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करे। वे सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करता है, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ঠিক আছে, তো सर्वनामिक विशेषण के चार भागे भाग करा হচ্ছে। একটা হচ্ছে निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, প্রশ্নবাচক सर्वनामिक विशेषण আর সম্বন্ধবাচক सर्वनामिक विशेषण। এই ভাগগুলো কিন্তু আসে না, ঠিক আছে, কিন্তু আমরা যখন পড়ছি তাই পুরোটা জেনে নেব এবং উদাহরণগুলো জানার জন্য আমরা জেনে নেব। ঠিক আছে, এই ভাগগুলো কিন্তু আসে না, একদমই আসে না। তো উদাহরণগুলো আমরা দেখে নেবো এখান থেকে। উদাহরণগুলো দেখে নেব যে सर्वनामिक विशेषণের যে প্রথম ভাগ নিশ্চয়বাচক सर्वनाम মানে নিশ্চিতভাবে কোনো কিছু বলবে, যেরকম কি ধরো এ কার মেরি হে মানে এই গাড়িটি আমার, নিশ্চিত করে বলছি। ইস কিতাব কো জরুর পড়িয়ে একটা নিশ্চিত বইকে দেখে বলছি যে এই বইটিকে একদম জরুর পড়িয়ে মানে আপনি পড়ুন। তারপর হচ্ছে অনিশ্চিতবাচক सर्वनामिक विशेषण, जैसे कोई कुछ, आप मेरी कोई नहीं है, मैं कुछ आम लाया हूँ, मैं कुछ आम लाया हूँ। कुछ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें पता नहीं चलता। कुछ 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है। मतलब इसका कोई ज्ञान हमारे पास नहीं है। कितना आम है, मैं कितना आम लाया हूँ, मतलब कोई निश्चित चीज, कोई निश्चित बात इसमें नहीं है, মানে কোনো নিশ্চিতভাবে কোনো কিছু বলা নেই। পরেরটা কি? প্রশ্নবাচক सर्वनामिक विशेषण, যেটার মধ্যে কি প্রশ্ন থাকবে একটা, যেরকম कौन क्या किसे कब कैसे। जैसे कि उदाहरण देखो, आप कौन है, आप कौन है, कौन है आप, মানে এর মধ্যে একটা প্রশ্ন থাকছে कौन। आप अभी कैसे है, आप अभी कैसे है, इसके आगे देखो एक জিজ্ঞাসা চিহ্ন লাগা है। आप अभी कैसे है, আপনি কিরকম আছেন এখন, প্রশ্ন লেগে যাচ্ছে। आप क्या करते हैं, আপনি কি করেন, প্রশ্ন লেগে যাচ্ছে। তাহলে এটা কি হচ্ছে? প্রশ্নবাচক सर्वनामिक विशेषण। আর লাস্ট আসছে সম্বন্ধবাচক सर्वनामिक, मेरा हमारा तेरा इसका उसका, মানে যার মধ্যে কোনো সম্বন্ধ থাকবে। जैसे कि दीपा तुम्हारा कौन है, दीपा तुम्हारा कौन है, মানে এর মধ্যে কি একটা সম্বন্ধ দেখা যাচ্ছে, মানে দীপার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক। মেরা চাবি হে, এ মেরা চাবি হে, চাবির সঙ্গে তোমার একটা সম্পর্ক। চাবিটা কি? কার? তোমার। वो उसका मित्र है, वो उसका मित्र है। जैसे कि दीपा मेरा मित्र है, दीपा से उसका संबंध है। ठीक है, तो बुझा गেল सर्वनामिक विशेषण चारटे भाग, निश्चितवाचक सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चितवाचक सर्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। এই ভাগগুলো আসে না, কিন্তু কি এই উদাহরণগুলো দিয়ে দেয়, এই উদাহরণগুলো থেকেই আমাদের পরীক্ষায় আসে। ঠিক আছে, নেক্সট দেখো বিশেষণের 2 নম্বর প্রকার বা ভেদ পরিমাণবাচক বিশেষণ। ঠিক আছে, চলো দেখে নি। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण शब्द जिनसे किसी वस्तु की नापतोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। আমি তো আগেই বলে দিয়েছি, যেমন 1 কেজি 2 কেজি, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা, সেটাই মানে যার কোনো পরিমাণ বলে দেবে। ঠিক আছে, এবার দেখো পরিমাণবাচক বিশেষণকে দুভাগে ভাগ করা হচ্ছে। এক হচ্ছে নিশ্চিত পরিমাণবাচক বিশেষণ আর 2 হচ্ছে অনিশ্চিত পরিমাণক বিশেষণ। তো নিশ্চিত পরিমাণ বিশেষণ যেমন ধরো 2 सेर 5 मीटर 1 लीटर 3 किलो 7 घंटा, 1 किलो आटा दो, 2 किलो आटा दो। आप एक निश्चित मापतोल बता के दे रहे हो। ठीक है, আপনি যখন চাচ্ছেন দেখো 1 কিলো 2 কিলো 3 কিলো 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা, একটা নিশ্চিত সময় বা একটা নিশ্চিত মাত্রা বলে দিচ্ছ,
তার জন্য এটা হয়ে যাচ্ছে নিশ্চিত পরিমাণবাচক, নিশ্চিত পরিমাণবাচক। আবার যখন অনিশ্চিত পরিমাণবাচক, সেখানে थोड़ा, अधिक, कुछ, अत्यंत। मुझे थोड़ा पानी दो, आप ये नहीं बोल रहे हो मुझे 1 लीटर पानी दो, थोड़ा 1 गिलास भी हो सकता है, आधा गिलास भी हो सकता है, ठीक है। अधिक, मुझे अधिक खाना नहीं है বা মুঝে অধিক খানা নেহি চাহিয়ে। অধিক মানে কতটা বোঝা যাচ্ছে না, মানে বলে হচ্ছে পরিমাণ, কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেই। কুছ, মুঝে কুছ আম দো। কুছ মানে আপনি দুটো চাচ্ছেন না একটা চাচ্ছেন সে বলতে পারছেন না, আপনি আবার এবার মন খুশি দেবেন। তাহলে যেখানে পরিমাণ বলা নেই সেটা হচ্ছে অনিশ্চিত পরিমাণবাচক বিশেষণ, আর যেখানে পরিমাণ বলা থাকবে সেটা হচ্ছে নিশ্চিত পরিমাণক বিশেষণ। বোঝা গেল? নেক্সট, এ দেখো উদাহরণ দিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণটা দেখে দাও একবার, উদাহরণটা পড়ে নিই। হ্যাঁ, পরিমাণবাচক বিশেষকের দুটো ভাগ, নিশ্চিত পরিমাণবাচক। তো নিশ্চিত পরিমাণবাচকের যে উদাহরণগুলো এখানে দেওয়া আছে দেখে নাও একবার। এক, মেরা পাস 2 লিটার দুধ হ্যাঁ, এক নিশ্চিত করে বলে দেওয়া হচ্ছে 2 লিটার দুধ আছে আমার কাছে। रबीना के पास 20 বিঘা জমিন হ্যাঁ, 20 বিঘা জমিন হ্যাঁ, নিশ্চিত করে বলে দেওয়া হচ্ছে। 5 লিটার তেল দেনা, 5 লিটার, 5 নিশ্চিত করে বলছেন যে 5 লিটার তেল দাও। 3 কিলো সেব দেনা, 3 কিলো আপেল দিন, মানে নিশ্চিত করে বলছো 3 কিলো আপেল চাই আপনার। মোবাইল কে ব্যাটারি 7 ঘন্টা চলেগি, নিশ্চিত করে বলা হচ্ছে 7 ঘন্টায় চলবে, বেশি চলবে না। আর অনিশ্চিতবাচক যখন পড়বো, মেরে পাস বহুত কাপড়ে হে, বহুত অনেক কাপড় আছে আপনার কাছে, কিন্তু নির্দিষ্ট বলছেন না আপনার কাছে 10টা আছে না 20টা আছে না 50টা আছে। मैं केवल इतना जानती हूँ, इतना মানে कितना जानते हो, 2-3 बात जानते हो, 4-5 बात जानते हो, क्या जानते हो, कुछ नहीं पता। इतना जानते हो ना बहुत जानते हो, निश्चित नहीं पता। मुझे कुछ सेब खरीदना है, खरीदने हैं, मुझे कुछ सेब खरीदने हैं, कुछ पर कुछ निश्चित नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो निश्चित नहीं होता तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक है, और जो निश्चित है वो निश्चित परिमाणवाचक है। মানে স্থির করে কোনো কিছুর মাপতল বললে সেটা হচ্ছে নিশ্চিত পরিমাণবাচক, আর যেটা নিশ্চিত করে বলা নেই সেটা হচ্ছে অনিশ্চিত পরিমাণবাচক বিশেষণ। বোঝা গেল? नेक्स्ट, विशेषण के तीसरे प्रकार गुणवाचक विशेषण। अब हम गुणवाचक विशेषण जानेंगे। देखो, गुणवाचक विशेषण वो विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा व सर्वनाम की गुण रूप रंग आदि का बोध हो, गुण रूप रंग आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जब गुण, दोष, रंग, रूप, संभाव, अवस्था, स्थिति, दिशा, स्थान মানে লাল, হলুদ, কালো রং, তারপর রূপ, সম্ভাব মানে সম্বন্ধ থাকবে সঙ্গে, কোনো স্থিতি, কোনো অবস্থা, दिशा उत्तर दक्षिण पश्चिम, जैसे कि उत्तर दिशा का जमीन मेरा है, ऐसे जो आएगा वो गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। चलो देखते, देखिए गुणवाचक विशेषण को हम एकदम आपके लिए सीरियल वाइज लेकर आए हैं। देखिए, जो गुणबोधक है जैसे कि अच्छा, रूबीना बहुत अच्छा है, राम भला आदमी है, दीपा बहुत सुंदर है, कृष्ण श्रेष्ठ व्यक्ति है, शिष्ट ये बालक बहुत शिष्ट है, तुम बहुत दानी हो, हम समझदार है। ऐसे जो है गुणबोधक है, उसका गुण बता रहा है, ठीक है। अब दोषबोधक, बुरा, जैसे कि दीपेन बुरा है, राघव खराब है, उद्दंड वो बहुत उद्दंडी लड़की है, ठीक है। ऐसे कि इसको दोष बताया जा रहा है, वो दोषबोधक गुण विशेषण है, ठीक है। और ये दोष नहीं होगा, ये देशबोधक होगा, ठीक है, देशबोधक। जैसे कि दीपा अमेरिकी है, रीतू चीनी है, दीपेश मद्रासी है, दीपक पंजाबी है, तुम भारतीय हो, मैं ग्रामीण हूँ, ठीक है। ये जो देशबोधक है, ठीक है, ये भाग नहीं आता, ये जो उदाहरण है ये आती है, तो इसलिए हम एक बार इसको सुन लेंगे, ठीक है। सिर्फ सुन लो, इसका कोई लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ मुझे सुन लो जस्ट। कालबोधक मतलब समय, प्राचीन, नवीन, सैनिक আর সেনভঙ্গুর মানে হচ্ছে কোনো সময় ধরে, প্রাচীন মানে প্রাচীন কাল থেকে শুনে আসছি, বা এই নতুন,
এই ধরনের যদি কিছু থাকে সেটা হচ্ছে কালবোধক হবে, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে রंगবোধক, काला पीला नीला हरा गोरा, जैसे राम काला है तुम पीला हो, कृष्ण नीला है सेब हरा है, ये सब होगा रंगबोधक। और गंधबोधक, खुशबूदार, एक गुलाब बहुत खुशबूदार है, ये बिरयानी बहुत सुगंधित है, ठीक है। तो ऐसे होगा, ये गंधबोधक हो जाएगा। और दिशाबोधक, उत्तरी दिशा दक्षिणी दिशा, उत्तर भाग दक्षिण भाग, जैसे कि उत्तर भाग की सारी ज़मीन मेरी है, दक्षिण भाग की सारी ज़मीन तुम्हारी है, ये सब हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। और भी है, देखो ये देखो, अवस्थाबोधक, अवस्थाबोधक, गीला, मेरा कपड़ा गीला है, अभी तुम्हारा कपड़ा गीला है ना, भीजे कपड़। सूखा, अभी मेरा ज़मीन सूखा है। जला, जबान, बूढ़ा, रोगी, कमज़ोर, ये सब क्या है, अवस्थाबोधक। तुम्हारा क्या अवस्था है वो अवस्थाबोधक है, ठीक है, মানে অবস্থা, তোমার যা অবস্থা সেই অবস্থা অনুযায়ী হচ্ছে এটা। তারপর হচ্ছে আকারবোধক, কেউ ছোট কেউ বড় সেটা বলা হচ্ছে। राम लंबा, सीता छोटा, तुम बड़ा, दीपा गोल, ठीक है, ऊंचा लंबा चौड़ा मोटा, ये सब हो गया आकार बोधक। तो बस दशा बोधक, भला भला चंगा रोगी, ठीक है, ये हो गया दशा बोधक। तब शास्त्र बोधक, सॉरी स्पर्श बोधक, मखमली, ये कपड़ा बहुत मखमली है, बहुत मुलायम है, ठीक है, बहुत नरम है, ये हो गया स्पर्श बोधक। तापर स्वाद बोधक, स्वाद स्वाद माने स्वाद बोधक, खट्टा मीठा स्वादिष्ट कसीला, जैसे कि এটা কি টক, এটা খুব মিষ্টি, এটা খুব তেতো, এটা হচ্ছে स्वादबोधक गुणवाचक विशेषण। और स्थितिवाचक और ये समयबोधक, आधुनिक प्राचीन नवीन दैनिक मासिक वार्षिक, বোঝা গেল। नेक्स्ट এই যে গুণবাচক বিশেষণের কয়েকটা উদাহরণ। राम एक बलवान लड़का है, राम एक बलवान लड़का है, ये राम हो जाएगा विशेषो, बलवान हो जाएगा विशेषण। और जिसका बता रहे जो बलवान हो जाएगा कैसा विशेषण है, गुण, इसका गुण बता रहे, लड़का राम जो लड़का है वो बहुत बलवान है, वो उसका गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण है। बलवान क्या है, कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। जैसे कि गोवा, गोवा ना गोवा, एक सच्चा नगर है, एक सच्च नगर है, गोवा एक सच्च नगर है, सच उसका गुण बता रहे, পরিষ্কার নগর, ঠিক আছে, মানে পরিষ্কার শহর, এর গুণ বলছে। कमलेश सीधा आदमी है, कमलेश सीधा आदमी है, सीधा এর सीधा হচ্ছে গুণবাচক। चाय फीकी है, चाय फीकी है, फीकी फीकी হচ্ছে গুণবাচক। दीपू अच्छा लड़का है, अच्छा अच्छा, ये अच्छा হচ্ছে गुणवाचक, ठीक है, ऐसे देख लेंगे आप। उसके बाद आइए, विशेषण के जो आखिरी भेद है वो है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। वह विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, संख्या का निर्दिष्ट होगा, जैसे गुण में पढ़ा था हमने, ऐसे ही होगा, एक दो तिगुना चौगुना चार, पहला दुगुना दोहारा आदि। और अनिश्चित संख्यावाचक जिसका মানে যেটার কোনো নিশ্চিতভাবে কোনো কিছু বলা থাকবে না, যেমন থোড়া, अधिक, कुछ, অত্যন্ত, কাফি, মানে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা নেই। নেক্সট, সংখ্যাবাচক বিশেষণের যে ভেদগুলো সেই ভেদ দিয়ে দিয়ে উদাহরণ আলোচনা করা হয়েছে।
पूर्ण संख्यावाचक विशेषण 10 लड़कियां, 5 आदमी, 2, 4, 7, ये हो गया पूर्ण संख्यावाचक विशेषण। अपूर्ण क्या होगा? 2.5, 3.5, 4.5, 4.7, 2.5 किलोमीटर आदि, মানে 2.5, 1.5, 3.5, 4.5, এগুলো হচ্ছে অপূর্ণ সংখ্যাবাচক। কি আবৃত্তিবাচক? 3, 4, 3 বার, 4 বার, 7 বার ইত্যাদি। তারপর সমুদায়বাচক 5, 7, 8 সভি, সমুদায় মানে একটা দলকে বোঝানো হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সমুদায়বাচক। আর সমুচ্চয়বাচক দশক, चालीसा, चौपासा, सटा, दर्जन इत्यादि। इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो अगले देखते हैं हम। संख्यावाचक विशेषण की जो उदाहरण दिया गया है वो देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक की, कमरे में एक पंखा घूम रहा है। एक पंखा निश्चित करके बोल दिया गया है, एक पंखा, ठीक है। मेरे कक्षा में 50 विद्यार्थी है, ये निर्दिष्ट करके बोल दिया गया है, মানে তার ক্লাসরুমে 50 বিদ্যার্থী আছে, নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া আছে, তার জন্য ওটা নিশ্চিত সংখ্যাবাচক হচ্ছে। मेरे पास 2 केले है, 2 केले, 2 মানে 2 সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হচ্ছে, তা হচ্ছে নিশ্চিতবাচক। আর অনিশ্চিতবাচক কি? कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित है। बहुत कम माने कितना कम वो नहीं बोला है, संख्या निर्दिष्ट करके नहीं बोला है, इसलिए ये अनिश्चितवाचक हो रहा है। आज बहुत सारे पंछी उड़ रहे हैं। बहुत सारे निर्दिष्ट करके नहीं बोला है, 2, 3 नहीं बोला है, बहुत बोल रहा है, इसलिए निश्चित नहीं है, इससे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। अगले देखते हैं। अगले देखिए, इसमें इतना ही था, तो हम फिर से एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं क्या क्या बोले मैंने, ठीक है। रिवाइज कर देते हैं फिर। विशेषण के 4 भेद थे। परिमाणवाचक, 1 परिमाणवाचक, 2 गुणवाचक, 3 संख्यावाचक, सर्वनामिक। परिमाण মানে নির্দিষ্ট করে পরিমাণ করে বলা থাকবে, সেটা নিশ্চিত পরিমাণবাচক। আর অনিশ্চিত পরিমাণবাচক মানে নির্দিষ্ট করে বলা থাকবে না, মানে কোনো পরিমাণ থাকবে। গুণবাচক সেটা ভালা, বুড়া, খারাপ আদি ইত্যাদি বলা থাকবে, সেটা হচ্ছে গুণবাচক। সংখ্যাবাচক মানে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা বলা থাকবে। সংখ্যাবাচকের 2 ভাগ আছে, নিশ্চিত সংখ্যাবাচক, অনিশ্চিত সংখ্যাবাচক। নিশ্চিত করে থাকলে নিশ্চিত সংখ্যাবাচক, আর সংখ্যাবোধক না বোঝালে সেটা হচ্ছে অনিশ্চিত সংখ্যাবাচক। আর সর্বনামিক মানে কোনো কর্তা দিয়ে বোঝাবে, তখন তাকে সর্বনামিক বিশেষণ বলা হবে, ঠিক আছে। তো কয়েকটা কোশ্চেন এনেছি আপনাদের জন্য, সেই কোশ্চেনগুলো একবার দেখে নেবে। তোমাদের জন্য কিছু কোশ্চেন এনেছি, তো কোশ্চেনগুলো দেখো পারছো কিনা। 8-9টা কোশ্চেন করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। কোশ্চেন, প্রথম কোশ্চেনটা কি? প্রবিশেষণ বাতাতে হ্যাঁ মানে প্রবিশেষণ কি বলে? প্রবিশেষণ বলে विशेषण की विशेषता, मैंने बताया था ना, प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे कि राम खूब बुरा, राम खूब अच्छा, राम खूब भला, राम खूब भला, রাম খুব ভালা। এই দেখো রাম হচ্ছে এখানে রাম হচ্ছে বিশেষ্য, আর ভালা হচ্ছে বিশেষণ। আর বিশেষণেরও বিশেষতা বোঝাচ্ছে এটা খুব, মানে খুব, রাম খুব ভালো সেটা বোঝাচ্ছে, তার জন্য এটা হচ্ছে প্রবিশেষণ। মানে বিশেষণেরও বিশেষতা বলছে, তার জন্য এটা হচ্ছে প্রবিশেষণ। তাই প্রবিশেষণ কিসে কয়, মানে কাকে বলে? প্রবিশেষণ বলে হচ্ছে বিশেষণের विशेषता जो बोले ताके बोला है प्रविशेषण। नेक्स्ट, देव संज्ञा शब्द का विशेषण क्या है? देव संज्ञा शब्द का विशेषण है दैवीय, ठीक है। नेक्स्ट, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया,
इसमें विशेषण है, इसमें विशेषण क्या, मदन, मदन हो जाएगा विशेष्य। काली, काली पतलून, কালি পাতলুন, পাতলুন কিরকম কালি, কালি হচ্ছে বিশেষণ, তাহলে কালি এখানে উত্তর দেওয়া আছে। अग्नि का विशेषण शब्द है अग्नेय। श्याम धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है, धीरे धीरे, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, चलना अगर चलना है क्रिया है, क्रिया के आगे जो लगा हो गया, जो विशेषण क्रिया के आगे लगा हुआ और क्रिया का जो क्रिया का चाल बता रहा है, जैसे चलना, धीरे धीरे चलना व तेज तेज चलना, वो हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या होगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट। ए नई साड़ी है, ए नई साड़ी है, ए नई साड़ी है, साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है, नई शब्द है विशेषण नवीन, प्राचीन, याद आ गया, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में हमने पढ़ा था नवीन, प्राचीन, सैनिक। तो नई मतलब হচ্ছে নতুন, নতুন শাড়ি, তো নতুন হচ্ছে বিশেষণ। नेक्स्ट। अर्चना अत्यंत सुंदर है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, अर्चना अत्यंत सुंदर है विशेषण, विशेषण सुंदर, सुंदर हो जाए विशेषण। আর অত্যন্ত যদি বলে, অত্যন্তটা কি, এটা হচ্ছে প্রবিশেষণ, সুন্দরেরও বিশেষতা বলছে, সেটা হচ্ছে অত্যন্ত, সেটা হচ্ছে প্রবিশেষণ, আর অর্চনা हो जाएगा विशेष्य। नेक्स्ट। विशेष्य के पहले लगने वाला विशेषण काला, सफेद, अच्छा, अच्छी को कौन सा विशेषण कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। वाक्य के पहले जो विशेषण लगेगा उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण व सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट। अनुमान का क्या विशेषण होगा, अनुमान का विशेषण दोनों हो गया, क्या, अनुमानित और अनुमति। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्यामी मर्दायित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। और अगर हम पूछे विशेष्य क्या है, মানে বিশেষ্য কাকে বলে, তখন কি বলবে, যার গুণ সম্পর্কে বলা হবে, যার সম্পর্কে বলা হবে সেটা হচ্ছে বিশেষ্য। আর প্রবিশেষণ কি, विशेषणेर विशेष्य जे बोलबे सेटा हच्छे प्रविशेषण। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। चतुर, चतुर होगा विशेषण, क्योंकि विद्यार्थी को चतुर बोला जा रहा है, विद्यार्थी का जो विशेषण हो रहा है वो चतुर, मतलब बुद्धिमान विद्यार्थी, बुद्धिमान शिक्षार्थी, जो चतुर होच्छे विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा विशेषण है, हम देख के ही पता रहे। नेक्स्ट। इंद्रिय का विशेषण क्या हो गया, इंद्रिय। एक गाय अधिक दूध देती है, एक गाय अधिक दूध देती है, एक गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रही है, अधिक, ये जो अधिक है, ये जो अधिक है किसकी विशेषता बता रही है। आप बोल रहे हैं कि दादा दूध, दूधের विशेषण बोलছে না, একদমই না, दूधের विशेषण হয় নাকি আবার, গায়ের विशेषण মানে গরু, গরু অধিক দুধ দেয়, গরুর विशेषण বলছে, তাই এটা गाय की हो जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, आज इतना ही। आप बताइए क्या आपको विशेषण समझ आया, अगर समझ आया तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। तो इसके बाद का क्लास हम इस वीडियो के ऊपर ले आएंगे, अगर आपका जानने की इच्छा